Now we are going to solve the series and parallel combination of the capacitor. So first of all, series combination of capacitors. So whenever capacitor attached in the series, so like this is a capacitor AB, okay, plus Q charge, and this second capacitor AB, his capacitance is C1, is C2, and next one is C3, and so on. How much capacitor will attach in the series, and last one attached to the earth. So देखिएगा सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तो यहाँ चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, चार्ज रिमेन्स सेम. देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज गिवन किया गया तो प्लस हो जाएगा, और इतना ही इस पर निगेटिव होगा. आउटर सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, बट आउटर फिर इससे कनेक्ट हो गए तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू. तो अगर हम कंसीडर करें कि इनमें प्लेट पर क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज ही सब में रहेगा. सो वी कैन से दैट चार्ज रिमेन्स सेम इन सीरीज, यानी सीरीज में जो चार्ज है सेम रहेगा, और कैपेसिटी डिफरेंट है, इसलिए इनका पोटेंशियल भी क्या है, एक तरीके की कैपेसिटी है, पावर है, हमने डिस्कस किया है लास्ट टॉपिक में से. सो V means potential will be differ. So we can say that here this is V1, this is V2, this is V3, and the given potential is V. So we can say that V equals to V1 plus V2 plus V3 and so on. But we know that V equals to Q by C, and this is series combination, so we can write this CS, and V1 equals to Q by C1, V2 equals to Q by C2, V3 equals to Q by C3, and whatever. How much capacitor attached in there? So in this we will solve the value of potential V1, V2, V3, and finally we will put the all the values in equation first. By equation first, okay, so it will be equals to Q by CS, Q by C1, Q by C2, Q by C3, and so on. So Q common, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 equals to Q by CS. It is equals to 1 by CS, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. In this way we will solve the resultant capacitance in series combination. Okay, so we know that. Let me consider here three capacitor of the capacitance C1, C2, C3 with potential V1, V2, V3 attached in the series, and in the series combination charge remains same. So according to this, the resultant potential will be equals to the scalar sum of all the potential of the capacitors. Due to this, we will solve V equals to V1 plus V2 plus V3 and so on. And we know that V equals to Q by C. So this is resultant, so Q by CS, and this is series combination. So V1, V2, V3, all these values put in this equation first, and finally we will solve 1 by CS equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. And now parallel combination of the capacitors. So parallel combination, so capacitor attached are in this way. This is first capacitor whose capacitance is C1. This is second capacitor whose capacitance is C2, and this is a third capacitor whose capacitance is C3, and all these attached in the parallel combination. So whenever Q charge is given to this, so here this charge Q1, Q2 and Q3, okay, and potential is V, okay. So in parallel Q different होगा and V सेम रहेगा.
पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग Q चार्ज स्प्लिट्स हो गया है 3 पार्ट में। सो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड वी नो दैट Q equals to CV. So this is C parallel combination. So it is equals to CV, and according to this Q1 equals to C1V, Q2 equals to C2V, and Q3 equals to C3V. Okay? सभी चार्ज को कैलकुलेट करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो इट इज इक्वल्स टू CPV equals to C1V, C2V, C3V and so on. So Cp equals to C1 plus C2 plus C3 plus dot dot. In this way we will solve the parallel combination. Okay, capacitance of capacitor in parallel combination. Okay, and let me discuss some example in this case. देखिएगा हमने सीरीज में क्या डिस्कस किया, CS जैसे कुछ दो कैपेसिटर ले लें C1 एंड C2, ये ऐसे अटैच है C1 C2 सीरीज में, तो इनका सीरीज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। एंड कंडीशन लगा दें इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, देन ये क्या हो जाएगा CS इक्वल टू, सॉल्व करके देख लीजिए, C इंटू C अपॉन C प्लस C, 2C मीन्स C/2। यानी यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड, दूसरे की है 20 माइक्रोफैरड, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो देखिएगा इक्वल कैपेसिटेंस हैं तो C1VC C2VC तो कितना आ जाता है C का हाफ, यानी ये कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 10 माइक्रोफैरड। तो ये रिजल्टेंट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, सो डायरेक्टली आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर हमें कैपेसिटेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिनिमम लानी है तो कैपेसिटर्स को किसमें अटैच करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, बिकॉज ऑल दिस कैपेसिटेंस कम इन फ्रैक्शन फॉर्म, इसमें किसमें आ जाते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अगर 10,000 भी होगा तो 1/10,000 बनेगा, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सो फॉर मिनिमम कैपेसिटेंस अटैचमेंट किसमें होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो इसके अगेंस्ट में अगर मैक्सिमम लाना है फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस, तो आपको पता है मैक्सिमम में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे फॉर्मूला आया था C1 प्लस C2 प्लस। तो देखिएगा जितने भी ऐड करेंगे और पैरेलल में ऐड करते हैं तो उसका अमाउंट डायरेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी मैक्सिमम लाना है तो उनको किसमें अटैच करना चाहिए, पैरेलल। क्लियर? तो अब देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये कैपेसिटर्स इस तरीके से हैं सीरीज में से, देखिएगा 10 माइक्रोफैरड, 10 के 4 कैपेसिटर्स हैं, 4 कैपेसिटर्स, और ये किसमें अटैच्ड है, सीरीज में, ये। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, सो 1/CS इक्वल टू 1/10 1/10 1/10 1/10। सीरीज का ही फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, जितने हैं वो आए। तो ये आ जाएगा 4/10 इक्वल टू 1/CS। सो CS की वैल्यू आ जाएगी 10/4 माइक्रोफैरड। अब अगर यही अगर पैरेलल में अटैच होते, देखिए तो पैरेलल में क्या आ जाता, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इट मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना आ जाता, 40 माइक्रोफैरड। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर 10 माइक्रोफैरड की मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए तो कितनी आई थी, 10/4 माइक्रोफैरड, और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 40 माइक्रोफैरड आएगी। बाकी अगर इनका कॉम्बिनेशन कोई चेंज भी करें
कुछ सीरीज में लगाएं, कुछ पैरेलल में लगाएं, तो वो इनके बीच में ही लाई करेगी। तो ये हो गई मिनिमम और ये हो गई मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम कैपेसिटेंस आपको लाना है तो सीरीज में अटैच करिए और मैक्सिमम लाना है तो पैरेलल में अटैच करिए। देखिएगा, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स हैं 4, in which we will attach the 4 capacitor of capacitance 1 microfarad each, then its resultant capacitance will become just like this। 1 माइक्रोफैरड है कैपेसिटेंस और ऐसे ही कितने कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर हैं। इसको किस तरीके से अटैच किया जाए कि इनकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड आ जाए, सेकेंड 0.25 माइक्रोफैरड आ जाए, ये 1 माइक्रोफैरड आ जाए, 3/4 माइक्रोफैरड आ जाए, 4/3 माइक्रोफैरड आ जाए। ऐसे कुछ कंडीशंस हम इसकी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक तरफ से आप सॉल्व कर दीजिए, अपने आप जो आना होगा आता जाएगा। ये 4 कैपेसिटर्स हैं, तो हमने पहले इनको किस में अटैच कर दिया, सबको सीरीज में लगा, ऑल इन सीरीज। देखिए 1 1 1 1, सभी जब सीरीज में कर देंगे तो 1/1 1/1 1/1 1/1 कितना आ जाएगा, 4/1 1/c इक्वल्स टू इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 मीन्स 0.25 माइक्रोफैरड। एक ऑप्शन मिल गया हमारा 0.2 माइक्रोफैरड। अब हम चेक करते हैं, अगर सबको पैरेलल में लगा दें, ऑल इन पैरेलल, सो CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरड। हमें दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। ओके, अब हम चेक करते हैं इनकी नई कंडीशन। देखिएगा, अब हम जो कनेक्ट करेंगे ना ही सारे सीरीज में होंगे ना ही सारे पैरेलल में होंगे। तो हम 4 है तो हम 2 ले लेते हैं, 2 सीरीज में 2 सीरीज में और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में। A B 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, C1 C2 C3 C4। देखिएगा, मैंने बताया था जब दो इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी। तो ये मान लेते हैं C डैश आ गया, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से इन दोनों इक्वल हैं तो एक का हाफ आ जाता है इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया C डबल डैश, ये भी हाफ आ जाएगा। अब ये दोनों बचे तो इन दोनों को फाइनली जब हम ऐड कर देंगे पैरेलल में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो पैरेलल की इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये बन जाएगा। अब जो होगा इक्विवेलेंट आएगा रिजल्टेंट। तो देखिए पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, C1 + C2, तो C डैश प्लस C डबल डैश 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 1, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 माइक्रोफैरड 0.5 माइक्रोफैरड। तो आप ये ऐसे लिख दीजिए 0.5 माइक्रोफैरड प्लस 0.5, सो कंप्लीटली सॉल्व होके आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। सो एक सोल्यूशन हमें और मिल गया ये। तो ऐसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, अब अगर इनको हम 3 और 1 के रेशियो में चलते हैं, 3 सीरीज में ले लें और 1 के साथ पैरेलल में अटैच कर दें ऐसे, तो देखिएगा 1 1 1 1 माइक्रोफैरड। तो इन 3 का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं C डैश आ जाएगा, ये C4 है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, तो C डैश क्या आ जाएगा, देखिए 1/C डैश 1/1 1/1 1/2, क्योंकि तीनों किसमें है, सीरीज में, तो C डैश आ जाएगा 3/1, सो C डैश की वैल्यू 1/3, ये आ गई 1/3।
3, C डैश इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैरड और C4 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में आ गए हैं पैरेलल में, तो फाइनली जो A और B के बीच का एक कैपेसिटर बन जाएगा C इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1, सीधे पैरेलल में अटैच हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। अब हमें एक ऑप्शन और मिल गया ये, क्लियर। अब हम क्या करेंगे 3 पैरेलल में लेंगे और एक सीरीज के साथ अटैच करेंगे। तो 3 कैपेसिटर्स आप पैरेलल में कर दीजिएगा और एक सीरीज में ले लीजिए, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें 4 कैपेसिटर्स की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कितने केसेस बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन भी दिए जा सकते हैं। ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, तो देखिएगा इन तीनों का हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड C1 है और इन तीनों का ऐड होकर के एक और जो पहले लगा है उसी की सीध में अटैच कर देंगे, C डैश आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में है सीरीज में और ये जुड़ते ही फाइनल आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये जो कैपेसिटेंस बनेगा C इक्विवेलेंट आएगा और किसमें है सीरीज में, तो सीधे कर दीजिए C इक्विवेलेंट 2 के लिए आप C1 C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो C1 C डैश upon 1 plus 3, so this is equals to 3/4, so finally 3/4 microfarad आ गया, last option दिया। In this we will solve the equivalent capacitance, okay।